ایک بار پھر میں اپنے تمام طلباء و طلبات جو اردو پڑھنے والے ہیں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے، ان کو اپنے یوٹیوب چینل اردو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 10ویں جماعت کا جو دنوں امتحانات چلنے جا رہے ہیں جموں کشمیر کے اندر، ان کے لیے نئی طرز کا اور نئے پیٹرن پہ جو پیپر تیار کیا گیا ہے جے کے بورڈ نے، اس کا ایک ماڈل اور ساتھ میں گیسٹ پیپر لایا ہوں۔ آپ دھیان سے سنیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے۔ آئیے سیدھے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، اب پیپر جو ہے وہ 100 نمبرات کے بجائے 80 ہی نمبر کا ہوگا۔ پہلا سوال آپ کا اقتباس ہوگا، اور اقتباس جو ہے آپ کی کتاب سے نہیں لیا گیا ہوگا بلکہ وہ کہیں سے بھی اٹھا کر لایا گیا ہوگا۔ یہ غیر درسی ہوگا۔ میں نے آپ کے لیے ماڈل کے طور پر ایک اقتباس جو ہے، آپ میری دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، دیکھیے پڑھتے ہیں۔ نوشیروان بادشاہ نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم اور تربیت کے لیے استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھیے تعلیم تربیت پانے کی حالت کیا ہے۔ جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا لے کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ یہ پیراگراف ہے، اور اسی مناسبت سے کچھ خالی جگہیں نیچے دی گئی ہیں جن کو پیراگراف پڑھ کر ہم نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ تو پہلی خالی جگہ ہے، نوشیروان ایک بار اپنے ڈیش ڈیش کو استاد کے پاس بھیجا۔ تو یہاں پیراگراف پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند کو بھیجا تھا۔ ڈیش ڈیش گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا، تو اوپر پڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ مدت گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا۔ ڈیش ڈیش پانے کی حالت کیسی ہے، یعنی تعلیم اور تربیت پانے کی حالت کیسی ہے۔ استاد نماز کے لیے ڈیش ڈیش کر رہا تھا، استاد نماز کے لیے وضو کر رہا تھا۔ اور پانچویں خالی جگہ ہے، یہ دیکھ کر ان کو کافی ڈیش ڈیش آیا۔ تو پیراگراف پڑھنے کے بعد ہم یہاں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا، تو لفظ غصہ یہاں استعمال کیا جائے گا۔ یہ 5 نمبرات کی خالی جگہیں ہوں گی جن کو آپ نے پیراگراف پڑھ کے پر کرنا ہے۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہوگا وہ آپ کی نظموں میں سے کوئی بند اٹھا کر یہاں دیا گیا ہوگا۔ میں نے مثال کے طور پر یہاں پہ ایک بند لکھا ہے، کیسا ہی آدمی ہو افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع میل۔ تو یہ اقتباس جو ہے، یہ ایک نظم سے اقتباس نہیں بلکہ یہ ٹکڑا جو ہے، یہ بند جو ہے اشعار کا، یہ ایک نظم سے میں نے لیا ہوا ہے۔ اسی نظم کی مناسبت سے آگے کچھ سوالات دیے گئے ہوں گے یا خالی جگہیں دیے ہوں گی، لیکن ان کے لیے ملٹیپل چوائس دیے ہوں گے، آپ کو الفاظ دیے گئے ہوں گے، انہی الفاظ میں سے کوئی چن کر آپ نے ان کی جگہ جو ہے فٹ کرنا ہے۔ آدمی کیسا ہی کیوں نہ ہو ڈیش ڈیش کے طفیل، تو ہم نیچے دیکھیں گے ہمارے پاس آپشن دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مصیبت، دکھ، رنج اور افلاس۔ تو جو اوپر ہم نے پڑھا ہے پیراگراف، اس میں اس بند میں، نظم کے بند میں، وہی ہم کو لکھنا ہے۔ تو یہاں افلاس لفظ آ جائے گا۔ غریب آدمی کو کیا کہتے ہیں، کوئی گدھا، کوئی بیل، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی جانور، کوئی پاگل، یا ان 4 میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو ہم جب ان اشعار کو پھر پڑھیں گے ایک بار، تو ان کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے تو غریب کو کوئی گدھا کہتا ہے اور کوئی بیل، اس لیے اس کا پہلا آنسر جو ہے وہ صحیح ہوگا، اس پہ ہم ٹک کریں گے۔ پھر تیسرا سوال اس میں سے ہوگا، غریب کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، کتنے پھٹے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 تھوڑے تھوڑے، نمبر 2 تمام، نمبر 3 بہت، نمبر 4 سارے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کے لیے مناسب جواب ہو سکتے ہیں، لیکن بند میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم نے وہی الفاظ جو ہیں استعمال کرنے ہیں۔ تو ہم جب ان اشعار کو پھر سے پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے تمام کپڑے جو ہیں وہ پھٹے
होते हैं। मुंह खुश्क और दांत डैश डैश होते हैं, पीले, नीले, जर्द और साफ। तो कैसे दांत होते हैं? उनके दांत जर्द होते हैं। ये लफ्ज जो है डाला जाएगा यहाँ पर। और पांचवा है, ये इक्तबास किस नज़म से लिया गया है। तो जब आपने नज़म पढ़ी होगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा ये नज़म जो है वो मुफलसी से ली गई है, और इसका लिखने वाला जो है नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, गरीबी, मुफलसी, शहर आशोब, कोई नहीं। तो इसको हम मुफलसी पे टिक कर लेंगे। तो ये आपके 2 सवालात हो जाते हैं 5-5 नंबर के। और अब तीसरा सवाल भी है, ये भी 5 नंबर का है। इसके भी 5 पार्ट होंगे, और ये भी आपके गैर दरसी इक्तबास होगा, यानी ये आपकी टेक्स्ट बुक से इक्तबास नहीं लिया गया होगा। ये कहीं से भी अनसीन पैसेज, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है अनसीन पैसेज होगा, और के आखिर में कुछ सवालात दिए गए होंगे। उन सवालात के जवाब आपने पैसेज पढ़ के देने हैं। तो हमने यहाँ पैसेज जो है वो चूज़ किया है, या इक्तबास चूज़ किया है। कुदरत ने हमें कश्मीर में 4 मौसम दिए हैं, और चारों मौसम अपनी अपनी जगह अहमियत और आफादियत रखते हैं। मौसम बहार का अपना ही मिजाज होता है, मज़ा होता है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, हर तरफ हरियाली होती है। कश्मीर को दुल्हन की तरह सजाया गया होता है। कुदरत अपने कमाल पर नजर आती है। इस वक्त कश्मीर जन्नत का नज़ारा पेश करती है। तो ये इक्तबास है। अब इसी मुनासबत से कुछ सवाल दिए गए हैं, आइए हम उनके जवाब ढूंढें। कुदरत ने हमें कितने मौसम दिए हैं? तो सिंपल है, हमने अभी पढ़ा, कुदरत ने हमें 4 मौसम दिए हैं। किस मौसम में फूल खिलते हैं? बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं। किसको दुल्हन की तरह सजाया गया होता है? कश्मीर को मौसम बहार में दुल्हन की तरह सजाया गया होता है। क्या चीज़ अपने कमाल पर नजर आती है? कुदरत मौसम बहार में अपने कमाल पर नजर आती है। कौन जन्नत का नज़ारा पेश करता है? कश्मीर जो है मौसम बहार में जन्नत का नज़ारा पेश करता है। ये हिस्सा अलिफ था। अब यहाँ से हिस्सा बे जो है वो शुरू हो जाता है, और ये पोर्शन जो है ये ग्रामर का है। पहला सवाल इसमें होगा कि कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज को आपने इस्तेमाल करना है जिस तरह हदायत दी गई होगी। चौथा सवाल का पहला होगा लकड़हारा, हमने लिया है मिसाल के तौर पर। लकड़हारे को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये वाजे हो जाए ये मुजक्कर है या मुअन्निस है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तो रहा था से ये मालूम हुआ कि ये मुजक्कर है। इसी तरह कयामत, उन पे कयामत टूट पड़ी, इस तरह से ये वाजे हो गया कि ये टूट पड़ी से ये वाजे हो गया कि ये तानीस है। फिर किताब है, किताब को इस तरह से इस्तेमाल करना है ये पता चले कि ये वाहिद है या जमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मैं किताब पढ़ी जा रही है, जा रही है से ये वाजे हो जाता है कि ये वाहिद है। अगर है होता तो ये जमा होता। इसी तरह गाड़ी, गाड़ी चल रही है, इसके आखिर में भी जो लफ्ज है इससे ये वाजे हो जाता है कि ये वाहिद है। दोनों अल्फाज जो हैं वाहिद इस्तेमाल हुए हैं। आपका 5वां सवाल होगा किसी एक की तारीफ करनी, हरूफ दिए गए होंगे उनकी तारीफ करनी होगी। मैंने मिसाल के तौर पर हरूफ अतफ और हरूफ इल्लत लिखा है, ये 1-1 नंबर का होगा और इसकी मिसाल भी देनी है। और सवाल नंबर 6 आपके पास होगा हदायत के मुताबिक जवाब दे। ये कौवा काला है, इसमें इस जुमले में हमने बताना है काला क्या है, फ़ैल है, मफ़ूल है या सिफत है। ये सिफत है। लकड़हारा गिर गया, लकड़हारा इस जुमले में क्या है? ये फाइल है यानी काम करने वाला है। अकरम ने सेब खाया, सेब क्या है? सेब इसमें मफ़ूल है यानी काम सेब पर हुआ। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, चूहा इस जुमले में क्या है? ये मफ़ूल है इस, क्योंकि काम चूहे पे हो गया। मंजर बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत लफ्ज के बारे में हमने बताना है कि ये क्या है। ये खूबसूरत लफ्ज जो है ये सिफत है। इस तरह 5 जुमले होंगे, 5 जुमलों में आपको ये बताना होगा फाइल, मफूल और सिफत। और ये सवाल नंबर 7 जो है आपको कुछ मुहावरात दिए गए होंगे, उन मुहावरों को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। पाँव धो धो कर पीना, बाग बाग होना, नजर करना या जवाब दे देना। तो इनमें से आपको 2 करने हैं और ये 2 नंबर का सवाल होगा। और अगला सवाल जो है आपका सवाल नंबर 8 तरकीब नहवी होगा। इसमें 2 जुमले दिए गए होंगे, 2 में से एक की तरकीब नहवी आपको करनी होगी। मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ दिया है असलम ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। 2 में से आपको एक ही हल करना है और ये आपका 4 नंबर का सवाल है। आपका अगला सवाल जो है
सवाल नंबर 9 होगा। ये हिस्सा जीम होगा, यानी तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा अलिफ, फिर हिस्सा बे और हिस्सा जीम। हिस्सा जीम जो है ये अदब से रिलेटेड होगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक जो आपकी दरसी किताब है उसमें से होगा। इसमें पहला सवाल होगा, किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए। नावल, अफसाना, गजल और कसीदा, इन 4 में से आपको किसी एक पर नोट लिखना है। ये 5 नंबर का होगा। फिर सवाल नंबर 10 होगा, किसी एक का खुलासा लिखिए। ये आपके जो दरसी किताब में जो मज़ामीन दिए गए हैं उनमें से किसी एक का खुलासा लिखना है। वहां पर 2 होंगे लेकिन मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। इन 3 में से आप कीजिए, इन 3 में से कोई एक जो है जरूर एग्जाम में आ जाएगा। खुशामद, इबरत, आसमान, लहू और फूल। फिर अगला सवाल जो है सवाल नंबर 11, या ये खुलासा भी 5 नंबर का होगा। फिर सवाल नंबर 11 जो है ये गजलों की तशरीह होगी। इसमें आपको चॉइस दी गई होगी। पहला मैंने लिखा है मीर की गजल से लिया गया है, हंगामा गरम कुन जो दिल नाबसूर था, पैदा हर एक नाला से शोर न शोर था, या मेरे सलीके से निभी मेरी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया। इसी तरह आपको दूसरा बे पार्ट में भी 2 शेर दिए गए होंगे, 2 में से एक की ही तशरीह करनी है। न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, और या में जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। फिर हिस्सा जीम में, कौन है जो नहीं हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, या मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। तशरीह के बाद जो 6 नंबर के होंगे, 3 अशार की तशरीह आपने करनी होगी 2-2 नंबर के। इसके बाद आपका सवाल नंबर 12 शुरू हो जाता है। इसमें आपको जो आपकी नज़में हैं, जो कसीदा है, जो मरसिया है, उनके आखिर में कुछ छोटे छोटे सवाल दिए हैं। उन सवालात में से 6 नंबर के सवाल जो हैं 2-2 नंबर का एक, सिर्फ 3 करने होंगे। मैंने यहाँ मिसाल के तौर पर दिए हैं। नात किसे कहते हैं, मुफलसी आदमी को किस किस तरह सताती है, मुफलस आदमी हर वक्त किस चीज़ की फिक्र में रहता है। तो इस तरह 3 सवाल होंगे और उनके जवाब आपने लिखने होंगे। मुख्तसर जवाब ये 2-2 नंबरात के होंगे। फिर सवाल नंबर 14 जो है, किसी एक की हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए। दोनों को मिलाकर, शायरी में से भी और नसर में से भी। मीरा मन दहलवी, मुंशी प्रेमचंद, आतिश और गालिब 4 होंगे। 4 में से आपको एक करना होगा। ये 5 नंबरात का होगा। उसके बाद आ जाएगा तहरीरी काम, हिस्सा दाल, यानी आपके पेपर के 4 हिस्से होंगे और चौथे हिस्से में आपको एक या तो खत लिखना है और खत के या में होगा आपको दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी। या एक्सकर्शन की दरख्वास्त होगी, या फीस माफ करने की दरख्वास्त होगी, या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त होगी, या आपके महल्ले में की गलियां गंदी पड़ी हैं उनकी गंदगी को साफ करने के लिए चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी के नाम दरख्वास्त होगी। आपके इलाके में बार बार बिजली की कटौती होती है तो चीफ इंजीनियर के नाम आपको दरख्वास्त लिखनी है। ये 6 नंबरात की है, बहुत आसान है। ये आप पढ़ते आ रहे हैं तकरीबन 5th-6th से ही, ये तमाम दरख्वास्तें और लेटर वगैरह। तो आपका 15वां क्वेश्चन जो होगा वो किसी एक मौजू पर आपको मजमून लिखना होगा। 4 आपके पास दिए गए होंगे। मैंने यहाँ जो लिखे हैं गेस्ट पेपर के तौर पर, उनमें एक कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ हैं, इल्म के फ़ायदे हैं, खेलों की अहमियत है और जंगलात के फ़ायदे हैं। इन 4 में से कोई न कोई ज़रूर आ जाएगा। और आखिरी सवाल जो होगा आपका, वो आपके नसरी असबाक जितने भी हैं उनमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे। उन 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं। ये 2-2 नंबरात के होंगे। मैंने मिसाल के लिए यहाँ पे लिखे हैं, पंडित चंद्र दहर को अपने पेशे की आजमत का एहसास कैसे हुआ, मुल्क सादिक कौन था, उसको शहजादे के साथ उसका कैसा सलूक था, और लोगों को धोखा देने के लिए हजन ने अपने पास क्या क्या चीजें रखी हुई थी। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर, जो नए पैटर्न के साथ, सीबीएसई पैटर्न के साथ इन दिनों चल रहे हैं पेपर। उर्दू का पेपर इसी तरह का होगा। आप इसको, मेरी वीडियो को गौर से देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।